सत श्री अकाल, मैं स्वराज सिंह ते तुसीं देख रहे हो लोक किरसा न्यूज़ हरियाणा। ते इस वक्त मौजूद हाँ सिरसा के किसान चौक। सो किसान चौक जो किसानों की याद दे विच अज दे ही दिन 1 साल पहला बनाया गया सी। सो अज राष्ट्रीय किसान मंच की जी टीम है इत्थे पहुंची है। सो उन्होंने वालों इस चौक की जी मुरम्मत है वो की गई है। तो उसके नाल ही जो किसानों की लगातार फसल है वो बर्बाद हो चुकी है भारी मीह और गड़ेमारी के कारण। सो उसके मुआवजे के लिए भी मंग पत्र सौंपा जाऊगा। तो इस वक्त साडे नाल प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद सिंह भारू खेड़ा ते उन्हां दी समुची जिहड़ी लीडरशिप है जिहड़ी टीम है अज इत्थे पहुंची आ। आओ उन्हां दे नीचे करने ते की कार्रवाई रहन वाली है। देखो जी जिहड़ी अज दी कार्रवाई आ अज दे दिन 3 अप्रैल नूं इत्थे किसान चौक ये ਜ਼ਾਲਮ सरकारां दे खिलाफ किसान चौक बनाया सीगा। ये किसान चौक इस करके बनाया सीगा कि किसानां दी जिहड़ी धरोहर आ किसान चौक, क्योंकि सरसे जिले में किसान चौक बनाया गया सीगा ते अज कुछ ट्राला वजन करके चौक खराब हो गया सीगा। ते असीं सोचा कि 3 अप्रैल नूं किसान चौक नूं नव निर्माण किया जाए जिहड़ियां कमियां पेशियां, क्योंकि ये साडी धरोहर है किसान चौक। साडा फर्ज बनता है कि इनूं असीं बचा के रखीए। जे असीं अपना किसान चौक ही ना बचा के रखे फिर असीं किसानां नूं की बचावांगे, क्योंकि साडी जिहड़ी जड़ आ इस चौक तो शुरू हुंदी आ। ते इस करके 3 तरीक दा असीं ये प्रोग्राम लिखिया सीगा। नाले जिहड़ियां फसलां बेमौसमी करके फसलां खराब होईयां आ उन्हां दा सरकार नूं जगाउण वास्ते सरकारां सुत्तियां पईयां आ। जिहड़ी स्पैशल गरदौरी है स्पैशल गरदौरी होवे। शायद मैं पहलों ही तुहाडे चैनल के माध्यम नाल डीसी साहब नूं एक सवाल कीता सी कि डीसी साहब एक गल दसो कि जदों किसान पराली नूं अग लाउंदा आ उदों ते नाल दी नाल पटवारी या तुहाडे होर अधिकारी आ मिंट 2 ही लाउंदे आ कहंदे पर्ची कट दो जी 2500 रुपए दी तुहाडी फोटो सैटेलाइट च आ गई आ। कि अज सैटेलाइट जिहड़ा इन्हां सरकारां दा सैटेलाइट आ कि वो बेमौसमी करके गड़े करके सैटेलाइट भी इन्हां दा खराब हो गया। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਗਰਦੌਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਚੌਕ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਏਕਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਏਕਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 3 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਿੱਥੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਚੌਕ ਦੀ ਕੋਲ ਸੀਗੀ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਚੌਕ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਚੌਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਚੌਕ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਚੌਕ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਤੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਚੌਕ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚੌਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਚੌਕ ਦੀ ਕੋਲ ਸੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਚੌਕ ਦੀ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਚੌਕ ਦੀ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 26-27 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੋਲ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਏ। ਇੱਕ ਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਕੋਲ ਦੇਤੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਦੀ ਕੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਡੋ ਪਾਟੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਆ ਵੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜੇਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਗਠਨ ਲੈ ਕੇ ਵੜੇ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਦੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਚ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਮੰਚ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿੰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ 3 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਇਹ ਕਿਸਾਨ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਜਾਂ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚੌਂਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਚੌਂਕ ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਚੌਂਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਚੌਂਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਗ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਅੰਨ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਿਸਾਨ ਚੌਂਕ ਆ। ਕੀ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਅੰਦੋਲਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਚੌਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਚੌਂਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਰੇ ਨਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਆਏ, ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਤੋੜ ਫੋੜ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਭਾਗਿਆ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੌਂਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਮੌਸਮੀ ਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬਾ ਘੱਟ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਬਰਸਾਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈ ਗਈ, ਕਣਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਭਰੂਖੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੈ सारी इतने पहुंची हुई हैं। आने का मेन वजह क्या है, कारण क्या यहाँ इकट्ठे होने के? आज किसान चौक का स्थापना दिवस है। आज से 2 साल पहले 3 अप्रैल को देश भर से जितने भी किसान जो शहीद हुए थे उनकी शहीदों की मिट्टी को जगह जगह से लाके यहाँ पे किसान चौक की स्थापना की थी जब दिल्ली के अंदर किसानों का आंदोलन चल रहा था। आज उस किसान चौक की जो है इसकी स्थापना दिवस है, उसका स्थापना दिवस बनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। दूसरा, इस चौक के साथ छेड़खानी की गई है। अब वो छेड़खानी किसी शरारती तत्वों ने की है, प्रशासन ने की है, या अनजाने में किसी की गाड़ी इसमें लग गई है, वो तो यहाँ के ट्रैफिक के जो अधिकारी है या जो कर्मचारी खड़े हैं उन्हीं को पता है। तो इस चौक को दोबारा से आज इसको ठीक किया गया है, इसके सीमेंट वगैरह और लगा के इसको सही किया गया है। और दूसरा हमारा बड़ा कारण, अभी जो मौसम की मार पड़ी है किसानों के ऊपर, जो इलाके के अंदर फसलों में बहुत बड़ा खराबा हुआ है, ओलावृष्टि की वजह से 100% खराबा हो गया किसानों की। गेहूं की फसल है, जो सरसों की फसल है, और जो कोई फसलें थी वो बर्बाद हो गई है, उसके मुआवजे की मांग करते हैं। किसी भी किसानों को जो है स्पेशल गिरदावरी करके उनको उचित मुआवजा जो है किसानों को दिया जाए। इन मांगों को लेके आज यहाँ पे इकट्ठे हुए।
चौक से छेड़खानी की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पास में ही जेजेपी कार्यालय भी है और यहाँ पर पुलिस अधिकारी भी तैनात रहते हैं, तो क्या लगता है ये एक सरकार की साजिश के तहत किया गया है, क्या है? ये हो भी सकता है, क्योंकि जब हमने 3 अप्रैल को पीछे 2 साल पहले चौक की स्थापना की थी तो रात को इन्होंने जेसीबी लगा के चौक को उठा के यहाँ से झाड़ियों में फेंक दिया था जो शहीदों की मिट्टी थी, तो ये भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी तरफ बड़े शर्म की बात यह है कि चौधरी देवीलाल का जो कुनबा है, ये दुष्यंत चौटाला है, अजय सिंह चौटाला है और जो ये परिवार है इनका, जो अपने आप को किसान हितैषी होने का दम भरते हैं, और इनकी दफ्तर के आगे ये चौक है, आज तक ये एक बार भी इस चौक के ऊपर रुक के इन्होंने नतमस्तक नहीं किया कि ये शहीदों का नाम पे चौक बना हुआ है, और ये वादे करते हैं, ये बड़ी बड़ी जो दम भरते हैं कि हम किसानों के हितैषी हैं। अगर ये किसानों के हितैषी होते तो ये यहाँ पे इस चौक का निर्माण भी करवा सकते थे, इस चौक के ऊपर आके ये नतमस्तक भी हो सकते थे। जब ये राजस्थान में जाके एक मंदिर बनाने के लिए 6 करोड़ दे सकते हैं तो क्या ये निर्माण चौक का नहीं कर सकते? लेकिन ये असल में इनको किसान दुश्मन नजर आता है कि ये जो चौक यहाँ पे बना है वो इनकी छाती के ऊपर बन गया है, और ये तो चाहते थे कि हम अपना ही कोई बुत यहाँ पे लगाते अगर ये चौक यहाँ पे ना बनता। तो इस तरीके की इनकी मानसिकता है। तो ये इनके कार्यालय के आगे चौक होना, तो सबसे पहले तो अगर ये किसान हितैषी होते तो रखवाली करना इनकी जिम्मेवारी बन जाती थी, भी किसानों को चौक है और इस चौक का हम निर्माण करेंगे, हम इसकी रखवाली करेंगे। दूसरा, यहाँ पुलिस प्रशासन भी रहता है, ट्रैफिक के जो अधिकारी यहाँ पे होते हैं, कर्मचारी भी यहाँ होते हैं, जिनका पूरे शहर के अंदर ये रूल बना रखा है कि कहीं भी चौकों के ऊपर हर जगह पे पुलिस खड़ी होगी। उसके बावजूद अगर चौक के साथ कोई छेड़खानी होती है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि सरकार की या इन जेजेपी वालों की कोई साजिश ना हो। किसान आंदोलन की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा किसान मंच काफी उभर कर सामने आया था, लेकिन आज की अगर मैं बात करती हूँ तो एक अंतर्राष्ट्रीय किसान मंच निकल रहा है, हरियाणा किसान मंच अलग निकल रहा है। क्या लगता है कि किसानों में अब दो फाड़ हो चुका है? किसानों में दो फाड़ नहीं है कभी भी, और किसानों के नाम के संगठन आज से नहीं है, जब से किसानों के ऊपर विपदाएं आई हैं तब से किसान संगठन बनते रहे हैं, किसान जत्थेबंदियां बनती रही हैं, और आगे भी जब तक किसानों के ऊपर संकट आता रहेगा किसान जत्थेबंदियां बनती रहेगी। हर इलाके के अंदर, हर ब्लॉक के अंदर, हर जिले के अंदर, हर राज्य के अंदर, पूरे देश के अंदर पता नहीं कितने किसान संगठन बने हैं, कितनी किसान जत्थेबंदियां बनी हैं। वो किसानों की मांगों को उठाते रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे। अगर मैं आज की बात करूं तो आज सिरसा में 3 किसानों जत्थेबंदियों द्वारा अलग अलग प्रोग्राम रखे गए हैं। क्या लगता है इससे सरकार पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि जिस तरीके से किसान भी कंफ्यूज हो रहे हैं, किस जगह जाएं, किस जगह ना जाएं, किसानों में भी एकता भी कमी नजर आ रही है इस वक्त। वो एक बात ठीक है कि आपस के अंदर जो गैप है, 2-3 अलग अलग प्रोग्राम हुए हैं, वो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। किसानों का आपकी बात ठीक है कि कन्फ्यूजन होता है, लेकिन इससे 3 प्रोग्राम हुए हैं तो इसका मतलब है कि सरकार के ऊपर दबाव भी पड़ेगा कि किसान चाहे कहीं भी किसी भी जत्थेबंदी में है, कहीं पर भी है, लेकिन वो किसानों की मांग उठा रहे हैं और सरकार के ऊपर प्रेशर बनेगा। आज हम अलग अलग प्रोग्राम रखे हैं, स्थापना दिवस का है, एक ओलावृष्टि की जो नुकसान हुआ उसकी मांग को लेकर रखा है, लेकिन जब देशव्यापी कोई बात आती है तो आपने पीछे देखा देश के 500 से ज़्यादा जो किसान जत्थेबंदियां एकजुट होकर दिल्ली का घेराव किया था। आगे भी अगर जरूरत पड़ेगी तो सारी जत्थेबंदियां एकजुट होकर फिर दोबारा से हम घेराव कर सकते हैं, दोबारा से बड़ा आंदोलन बन सकता है। प्रहलाद जी, अगर मैं बात करूं तो जैसे ओलावृष्टि के कारण काफी नुकसान हुआ है, लेकिन जो मुआवजा दिया जाता है उसके लिए जो गिरदावरी की जाती है तो बंद कमरों में बैठ के ही कुछ अधिकारी कर लेते हैं, तो जिनको असल में जिनका नुकसान होता है उनको मिल नहीं पाता है। इस तरीके की स्थिति भी कई बार उत्पन्न हो जाती है, तो क्या हमेशा से ऐसा होता रहा है? तभी तो किसान जत्थेबंदियों की जरूरत पड़ी है, तभी तो किसानों को सड़कों पे आना पड़ता है। अगर ये सरकार प्रशासन अपनी जिम्मेवारी ठीक से निभा लेते और ये जिसका नुकसान हुआ है उसको उचित मुआवजा दे देते तो आज किसानों को सड़क पे आके बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। ये हमेशा से होता है कि जब इनको वोट लेने होते हैं तब तो किसान मजदूर इनको याद आ जाते हैं, और जब किसानों पे संकट आता है तब ये पूंजीपतियों की गोद में बैठ जाते हैं, अपनी ऐसी रूमों में बैठ जाते हैं, फिर ये किसानों की तरफ देखते नहीं है, फिर ये अपने जो बिजनेस बढ़ाने में, अपनी जो संपत्ति बढ़ाने के अंदर लग जाते हैं, और जब वोट आते हैं तो फिर ये दावे करने लग जाते हैं। इसीलिए जरूरत है देश के अंदर जो किसान सड़कों के ऊपर है कि इनकी वादा खिलाफी के खिलाफ है, इनके जो वादे इन्होंने किए, किसानों के साथ धोखाधड़ी की, किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिलता, किसानों की मांगें पूरी नहीं होती। मंडियों के अंदर आप देखोगे मौसम की मार पड़ी, किसान अपनी फसल लेके आया, मंडियों में शेड नहीं है, किसानों की फसल जो है वो बारिश की वजह से खराब हो गई है। कहीं भी मंडियों के अंदर आप देखोगे अब गेहूं का सीजन शुरू होने वाला है, आप पूरे इलाके के अंदर बहुत सी मंडियां हैं, वहाँ पे किसानों की गेहूं जो है वो कच्ची मिट्टी के अंदर जो है वो
रुलती रहती है, वहाँ पे उनका कोई वाली बारिश नहीं है, टाइम के ऊपर बारदाना नहीं मिलता है, इससे किसानों को परेशानी होती है। एक तरफ मंडी में एक फसल लेके आता है, दूसरी तरफ उसकी दूसरी फसल खेत के अंदर खड़ी है, ऊपर मौसम की मार है, तो वो किसान घबराया हुआ रहता है। और ऐसी स्थिति के अंदर अब किसान जो है, देखा अब कल भी अखबार में खबर आ रही है, किसान ने आत्महत्या की है। अब ओलावृष्टि होने की वजह से, फसल नुकसान होने की वजह से, खेती जो ठेके पे ले रखी है उससे उसके कर्जा चढ़ने की वजह से बहुत से किसान जो आज मानसिक रूप से परेशान भी हो चुके हैं।